যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই যেতেই হবে, কিছু করার নেই। কিন্তু এই মায়ের গল্প শুনলে আপনার চোখে জল আসবেই, কারণ সন্তানকে পাকিস্তানে রেখে ভারতে এসেছিলেন তিনি, আর ফিরতে না পেরে তার মনটা ছটফট করছে। এই মায়ের নাম নম্রা। তিনি ভারতের নাগরিক, কিন্তু তার বিয়ে হয় পাকিস্তানে। 2021 সালের অক্টোবর মাসে তার বিয়ে হয়, লাহোরে বিয়ে হয় তার বাবা অসুস্থ, তাই তিনি ভারতে আসেন বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য। 2 বছর পর তিনি ভারতে আসেন, কিন্তু এখন যেতে দিচ্ছে না। ভারতীয় পাসপোর্ট থাকার জন্য তিনি যেতে পারছেন না পাকিস্তানে। পহেলগাম ঘটনায় অপরাধী অন্য কেউ, আর শাস্তি সাধারণ মানুষকে পেতে হচ্ছে, বাচ্চাকে ছেড়ে থাকতে হচ্ছে। লাহোরে 2.5 বছরের মেয়ে রয়েছে, মেয়ের ভিসা ছিল না, তাই তাকে লাহোরে রেখে আসতে হয়েছে। সরকারের কাছে অনুরোধ যাতে তাকে লাহোরে যেতে দেওয়া হয়। আমাকে খুব মনে করছে, ভাবতে পারছেন সন্তানকে ছেড়ে থাকতে মায়ের ঠিক কতটা বেহাল দশা। মায়ের কাতর আর্জি শুনুন। क्या नाम है आपका? नम्रा। हाँ जी, नम्रा। नम्र जी, ये बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं? जी तो आप पाकिस्तान में मैरिड हैं? हाँ जी। कब शादी हुई थी और कहाँ हुई थी? मेरी अक्टूबर में शादी हुई थी, 2021 अक्टूबर। कहाँ पे? लाहौर। लाहौर में। तो आप इंडिया में अपने पेरेंट्स से मिलने आई हुई थी? हाँ जी, पापा की थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब थी तो उनसे मिलने के लिए आई थी। 2 साल बाद आई थी मैं। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? यहाँ पहले भी 4 दिन पहले आए थे आप यहाँ आए बॉर्डर थे पे? तो वो उन्होंने अलाउ नहीं किया था। वो अचानक से सिचुएशन ऐसी बनी ना, तो वो उन्होंने उस दिन पाकिस्तानियों को ही जाने दिया। तो अब नूरी वीजे वाले पे जो जैसे हम लोग हैं तो कहते सरकार ने राहत दी है, तो कल भी कुछ गए हैं तो हमें पता लगा है, तो फिर हम रात को उधर से निकले हैं, क्योंकि कहीं कहीं मतलब स्ट्रगल करके आना पड़ता है, सफर करके, तो इतनी जल्दी तो नहीं आया जाता ना। तो कल रात के चले तो अब इधर पहुंचे हैं। यूपी में कहाँ से हैं आप? इस शामिल किराना। तो 4 दिन पहले जब आए थे इसलिए नहीं जाने दिया था, इंडियन पासपोर्ट है, तो आज भी इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन आप नूरी वीजे को अलाउ कर रहा है पाकिस्तान, उधर वापस ले रहे हैं? जी हाँ जी, कल लिया उन्होंने। तो इंशाल्लाह इसी यकीन पे इसी बेस पे कि शायद ले लें, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, निकाहनामा भी है, हस्बैंड का ID कार्ड भी है, और बच्चे की। कितनी मुश्किल आई ये सब जो हुआ है दोनों देशों के बीच में? बहुत ज्यादा मुश्किल आई। करता कोई भरता कोई हो रही है, आवाम परेशान है, बच्चे माँ से जुदा है। मेरी भी 2.5 साल की बेटी है, वो जो 2.5 साल की बेटी है लाहौर में ही है। उसको वीजा नहीं था तो उसको छोड़ के आई थी 2 साल बाद कि चलो पापा की तबीयत डिस्टर्ब है तो मैं आके मिल लूँ उनसे। तो क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं यही डिमांड करूंगी सरकार से कि मुझे जाने दें, मेरे ससुराल। मेरी बच्ची है 2.5 साल की, बहुत याद कर रही है। तो पाकिस्तान में जी। অন্যদিকে রাওয়ালপিন্ডি ইসলামাবাদের বাসিন্দা ছিলেন ওসামা। প্রায় 17 বছর আগে ভারতে চলে আসেন তিনি। ওসামার দাবি তিনি জম্মু কাশ্মীরের উড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটও দিয়েছেন। তবে এই খবর সামনে আসার পরই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কি করে যিনি ভারতীয় নাগরিক নন তিনি ভোট দিতে পারেন? জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। ওসামা জানান, ভারতের স্কুলেই 10ম ও দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেছেন তিনি। এখন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন। জুনে পরীক্ষা ছিল, কিন্তু তার আগেই তাকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। ওসামার কথায় চাকরির ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এখন সব এলোমেলো হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না কি করব। তার দাবি তিনি ভারতে ভোটও দিয়েছেন। তার কথায়, আমার কাছে আধার, প্যান, রেশন, ভোটার কার্ড রয়েছে, ভোটও দিয়েছি। তিনি উড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার, কিন্তু এখন কথা হলো কি করে যিনি ভারতীয় নাগরিক নন ভোট দিতে পারেন তিনি? জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। পহেলগামে জঙ্গি হামলার নিন্দাও করেন ওসামা। কেন্দ্রের কাছে তার দাবি, ধর্ম একপাশে রাখুন, মানবতা সবার আগে। পহেলগামে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমরা এর নিন্দা করছি, সঙ্গে অনুরোধ করছি সরকার যেন এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। ওসামা কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शामा इम्तियाज है। इम्तियाज जी, आप मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं? जी मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ। और इंडिया में आप क्यों रह रहे थे, कब से रह रहे थे? जी हम 2008 में आए थे। मेरे फादर बेसिकली यहाँ के थे, वो गए थे 90s में, तो उन्होंने वहाँ पे शादी की थी। तो फिर हम वहाँ से 2008 में ऐसे पाकिस्तानी नेशनल पासपोर्ट बना के वीजा लगा के हम यहाँ पे आए थे। जी। तो कहाँ के रहने वाले थे पाकिस्तान में आप? पाकिस्तान में हम रावलपिंडी इस्लामाबाद POK में थे, लेकिन नीचे शिफ्ट हो गए थे कुछ टाइम। और इंडिया में कहाँ पे थे? इंडिया में उड़ी से हैं। उड़ी से? जी उड़ी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला।
तो अब आप यहाँ पर आप किसके साथ आए हैं, कौन आपको लेके आया और क्यों लेके आया? जी पहले तो मैं अपनी डेली रूटीन फॉलो कर रहा था। हमें 24 घंटे पहले पता लगा कि ऐसे नोटिस तो पड़ी थी कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं वापस। तो चाहे वो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, चाहे वो किसी पे भी हैं, तो ऐसा कुछ पता नहीं था। बट हमें 24 आवर्स पहले पता लगा, तो हमें नीचे बुलाया गया स्टेशन में। हम वहाँ बैठे, तो उसके बाद फिर 11 बजे हमें बुलाया गया था। तो शाम के 11 बजे तक हम अंदर स्टेशन में ही थे। तो काफ़ी अच्छे से वो रहे वहाँ पे, कोऑपरेट किया। SHO साहब थे वहाँ पे, बाकी मुंशी साहब काफ़ी अच्छे से रहे। लेकिन जब शाम को 11:30 उन्हें अचानक से बोला कि अभी आपको निकलना है, तो तब वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन ख़राब सी होगी। बिल्कुल कुछ पता नहीं चला क्या है क्या नहीं, अचानक कैसे हुआ क्या नहीं। इवन हमें घर पे भी अलाउ नहीं किया गया कि आप लोग घर पे चले जाएं, कुछ जो आपके हैं सामान वगैरह बेसिक है वो आप उठा लो, वो भी हमें अलाउ नहीं किया। बस बिठाया गाड़ी में और बस हमें बारामूला ले आए पुलिस लाइन में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे तो भारत सरकार ने एक मौका दिया था कि हाँ 29 तारीख तक या आज तक जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी नेशनल, उनके वीजा सस्पेंड हैं, कैंसिल हैं, वो वॉलंटरीली चले जाएं, अपने आप चले जाएं। तो आप अपने आप नहीं जाना चाहते थे, तभी पुलिस आपको लेके आई? जी बिल्कुल। देखें, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा आधार कार्ड यहीं का है, मेरा वोटर ID यहाँ का है, मेरा 10th भी यहीं से हुआ, मेरा 12th भी यहीं से हुआ है। और अभी करंटली मैं अपना बैचलर्स परस्यू कर रहा हूँ। मेरे जून में फाइनल एग्जाम से तो मेरा ग्रेजुएशन हो जाता। ठीक है, तो मैं अपनी बात करूँ और अपनी फैमिली की, तो हमारे पे तो ऐसा कुछ है नहीं प्रेशर। हम सेटिस्फाई हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, खुश हैं। तो आपको लगता है पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसने सबके लिए मुश्किलें बढ़ा दी? इन निर्दोष लोगों को भी मारा गया और आप लोगों को भी हुआ, क्योंकि आप इन अ वे इंडियन नेशनलिटी के बिना यहाँ रह रहे थे। बिल्कुल। देखें, जो चीज़ें हुई ऑफ कोर्स उसी इंसिडेंट के बाद हुई, बट ये चीज़ गलत है। एज ए ह्यूमन हम इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या हो क्या नहीं, एक लेमैन आपको ये चीज़ नहीं बता सकता। ठीक है, तो उसी के बाद ये हलचल स्टार्ट हुई। इतना सारा कुछ हो जाएगा हमने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 17 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। इवन जो पिछले 30 40 साल से रह रहे हैं उनको भी ये निकाल रहे हैं। तो क्या चीजें हैं, क्या वहां पे देखें। सबसे अभी तो फिलहाल ये माइंड में चल रहा है। बताइए, पाकिस्तान में आप कहाँ जाएंगे और कौन है वहाँ? यही तो पता नहीं है ना। देखें, सबसे पहले तो यही तो सवाल है ना माइंड में। अब यहाँ से तो हमें भेजेंगे वहां पे, वहां जाके क्या होगा, चीजें कैसे रिएक्ट करेंगी, वही तो नहीं पता है ना। যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই যেতেই হবে, কিচ্ছু করার নেই। কিন্তু এই মায়ের গল্প শুনলে আপনার চোখে জল আসবেই। পহেলগামের ঘটনার পর থেকে এমন বেশ কিছু ঘটনা সামনে আসছে যা যেমন প্রশ্ন তুলছে, ঠিক তেমনভাবে চোখে জলও আসছে। কারণ মা তার সন্তানকে পাকিস্তানে রেখে ভারতে এসেছিলেন, আর ফিরতে পারছেন না। মনটা ছটফট করছে সন্তানের জন্য। মায়ের নাম নম্রা, তিনি ভারতীয় নাগরিক, কিন্তু বিয়ে হয় পাকিস্তানে। 2021 সালে অক্টোবর মাসে তার বিয়ে হয়, লাহোরে বিয়ে হয় তার বাবা অসুস্থ, তাই তিনি ভারতে আসেন বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য। 2 বছর পর তিনি ভারতে আসেন, কিন্তু এখন যেতে দিচ্ছে না। ভারতীয় পাসপোর্ট থাকার জন্য তিনি যেতে পারছেন না পাকিস্তানে। পহেলগাম ঘটনা অপরাধী অন্য কেউ, আর শাস্তি সাধারণ মানুষকে পেতে হচ্ছে। বাচ্চাকে ছেড়ে থাকতে হচ্ছে। লাহোরে 2.5 বছরের মেয়ে রয়েছে, মেয়ের ভিসা ছিল না, তাই লাহোরে রেখে আসতে হয়েছে। সরকারের কাছে অনুরোধ যাতে তাকে লাহোরে যেতে দেওয়া হয়। আমাকে খুব মনে পড়ছে, জানাচ্ছেন সেই মা। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।